The VPC pairing is like when two VPC want to talk to each other, when they want to communicate with each other. So you pair them, you connect them with a special connectivity. AWS maintain a pool of public IP address. This is not the right slide. ये उस दिन भी आ गई थी. इसको मैं करता हूँ, skip करता हूँ. Skip. Yes, the what is VPC pairing? Amazon VPC pairing connection is a network connection between two VPC. So you have created one VPC A, another one is VPC B. So connection between these two VPC is called VPC pairing. VPC pairing connection between your own Amazon VPC or with an Amazon VPC in other AWS account. For example, you have a company, and the company, they have a department called HR, and then they have a department called finance. So finance department has created their own VPC. So HR has created their own VPC. So they are totally different accounts. What he's saying कि ये दोनों जो VPC हैं जो कि डिफरेंट अकाउंट्स के अंडर आते हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. दे कैन टॉक टू ईच अदर. तो ये जो VPC कनेक्शन है, ये गेटवे नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है दो VPC के दरमियान. तो इसमें जो मॉडल है वो ये है कि अगर VPC A जो है वांट टू कम्युनिकेट विद VPC B और C और D, so they must have a one-to-one connection. They cannot go like a VPC cannot go through the. So the VPC A, if VPC A want to talk to VPC C, it must have a one-to-one connectivity. लेकिन ये नहीं हो सकता कि VPC B का कनेक्शन VPC C के साथ through VPC A जाए. If VPC C don't want to talk to C, they must have a direct connection. So this is the way it is work. So something like this. This is called like you transition. You cannot transit through the transitive routing. You cannot do the transitive routing. Transitive routing means that you have to go send the traffic to VPC A, and then VPC A on your behalf going to send the traffic to VPC C. This is not how it works. So the most important thing to remember that once you have assigned the IP address साइडर ब्लॉक, दे शुड नॉट बी ओवरलैपिंग. इसका मतलब है कि VPC A का जो साइडर ब्लॉक है, जो उसका रेंज है IP एड्रेसेस की, हैज़ टू बी लाइक दिस वन 10.0.0/16 and this one has a 192.60. This should not be same. You cannot have a 10.0/16 here. So they have to be different. See, all of these are different range and they are not the same. So let's get started. इसके अंदर जो आर्किटेक्ट है वो ये है. इस आर्किटेक्ट में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक VPC A बनाएंगे. उस VPC के अंदर हम एक बनाएंगे सबनेट A, सबनेट B. Subnet A is going to be a part of the public subnet and subnet B is going to be private subnet. So this is going to be VPC A architect. और दूसरी तरफ हम देखेंगे VPC B, ये एक और VPC B बनाएंगे इसमें, जो कि डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में भी हो सकता है, डिफरेंट रीजन में भी हो सकता है, लेकिन वी गोइंग टू क्रिएट इन अ डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन. तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक जो सबनेट है वो है प्राइवेट सबनेट, और ये प्राइवेट सबनेट के अंदर जो इंस्टेंस हम लॉन्च करेंगे, the end goal is this instance should be able to talk to the instance in this other availability zone, other VPC directly. How are we going to achieve this? Through creating a VPC pairing between these two VPCs. So इसके लिए let's get started.
So let's go to the VPC. So we have to create the VPC first. So let me delete my VPC I have already here. So it's not going to let me do this. Okay, anyway, let's create. So I will call VPC A .0. What is our architect? So architect is 100.0.0.16. So 10.0. So I will take this value और इसका मैं ये एक VPC क्रिएट करेंगे. सो लेट मी कॉल दिस. फर्ज करो कि ये लाहौर के अंदर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का नाम है LH VPC A. ये बिल्डिंग क्या है? ये डेटा सेंटर है. डेटा सेंटर मीन के इसके अंदर हम ये अपार्टमेंट ले रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर. तो अपार्टमेंट इज व्हाट इज अपार्टमेंट? अपार्टमेंट इज अ VPC. तो ये हमारी रेंज है. तो दिस इज माय VPC रेंज. साइडर ब्लॉक इसको कहते हैं, साइडर ब्लॉक. इसके बाद LH VPC A. सो व्हाट इज दिस? या वी हैव एक्स्ट्रा डिजिट and this has to be 16.0. So create VPC. अब हमने ये VPC क्रिएट कर लिया. The next step is this. We have to create the internet gateway कि ताकि ये इंटरनेट के साथ इसका ताल्लुक कनेक्शन हो सके. तो हम जहाँ जाएंगे so I will create a new gateway. I will call LHR IGW. ये मेरा गेटवे हो गया. अब मैंने इस गेटवे को अटैच करना है VPC के साथ. अटैच टू ये राइट हैंड साइड पे क्लिक हियर और आई हैव टू फाइंड माई VPC. तो ये मेरा VPC है जिसके साथ मैंने इसको अटैच करना ताकि वी कैन हैव आउटबाउंड ट्रैफिक. तो गेट पे दिखाना बहुत ज़रूरी है VPC को ताकि वो ट्रैफिक को वहाँ भेज सके. तो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन द नेक्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू क्रिएट 2 सबनेट, सबनेट A, सबनेट B. सो लेट्स डू दैट. अब हम यहाँ पे जाएंगे सबनेट में. यहाँ पे मैं अपना सबनेट क्रिएट करूँगा. Create subnet. I will call LH Lahore A subnet public. तो ये पब्लिक सबनेट होगा. इसके अंदर जो हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे वो इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट कर सकेगा. So let's do this. What happened? So I have to select my VPC. This is my VPC. LH A subnet SN public. ठीक है. इसमें मैं अपनी रेंज दे दूंगा 10.0.0. 100.0.0/24. ये मेरा पहला सबनेट हो गया. और मुझे एक और सबनेट
बनाना है जो कि प्राइवेट होगा। इसका नाम होगा LH LHA SNet PRV प्राइवेट, राइट। और इसका मैं करूँगा कौन सा 10.100.10, सो 10.1.1.0/24, ये मेरा दूसरा सबनेट है। So I have two subnets जो कि वन सी और 1D में क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो ये इसकी ये देखें, ये जो है ना इसका सबनेट और इनका जो क्या कहते हैं VPC है वो ये है, देखो सेम 57E। सो दो सबनेट सेम VPC में मैंने क्रिएट किए हैं, एक जो है वो प्राइवेट है और एक जो है वो पब्लिक है। तो लेट मी सी विच वन इज पब्लिक। I have to go back। ये US East 1 में इसको क्रिएट किया, और दूसरा जो है वो लेट मी एक्चुअली फिल्टर लाइक दिस। मैं इनका ये वाला इसको फिल्टर अप्लाई करता हूँ ताकि सिर्फ मुझे यही नज़र आएंगे। सो आई हैव 3। Why I have 3? I created 2, right? Did I pick the VPC ID? This one. Subnet. $57. Why it is showing 3? मैंने 2 क्रिएट किया। Oh, here I was wrong. It was, these are my VPC. So let me filter with this one. So these are the subnet I just created. See, Lahore SN public, Lahore SN private, और VPC कौन क्या मेरा, ये लाहौर VPC A। इसके अंदर 2 मैंने सबनेट बना लिए। सो दिस इज़ डन। अब क्या है, अब हमने जो इंटरनेट गेटवे हमने बनाया था उसमें जाके जो पब्लिक सबनेट है उसको अटैच करना उसके साथ। इंटरनेट गेटवे दिस वन, इसको मैंने अटैच करना है राउटिंग टेबल के साथ, दिस वन। सो आई फर्स्ट नाउ आई हैव टू गो टू राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल के अंदर ये जो मेरा VPC है इसको मैं फिल्टर कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये मेरा जो है ना, जब मैंने VPC क्रिएट किया तो एवरी टाइम जब आप VPC क्रिएट करते हो तो आपके एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल क्रिएट हो जाता है। उसका ये है कि इफ़ यू लुक एट दिस मेन, अंडर द मेन इफ़ यू से यस दैट्स मीन दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल जो कि खुद ही उन्होंने AWS ने क्रिएट कर दिया आपके लिए। तो मैं इसे लिखता होता हूँ LHA डिफ़ॉल्ट
ताकि मुझे याद रहे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक पब्लिक राउटिंग टेबल क्रिएट करूँगा। लेट्स सी द राउट, सी राइट नाउ इट्स अ लोकल, और इसके साथ कोई भी जो है एसोसिएट नहीं है, कोई भी सबनेट एसोसिएट नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मैं राउटिंग टेबल जो है, दो राउटिंग टेबल मुझे क्रिएट करने हैं, एक प्राइवेट के लिए और एक पब्लिक के लिए। सो लेट्स डू दैट। एक मैंने इस सबनेट के लिए राउटिंग टेबल बनाना और एक मैंने इसके लिए बनाना, दोनों के डिफरेंट राउटिंग टेबल्स होंगे। सो लेट्स डू दिस। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू राउटिंग टेबल। सो आई विल कॉल दिस VPC LHA पब्लिक। ठीक है, अब मुझे अटैच करना है इसके साथ VPC जो मैंने A बनाया, तो यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूंगा। अब मुझे इसको क्रिएट करना है, तो ये मेरा राउटिंग टेबल क्रिएट हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप है, जब ये राउटिंग टेबल क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस राउटिंग टेबल के साथ दो काम करने हैं। एक तो आपने अटैच करना है इंटरनेट गेटवे, इसको बताना है कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है ये राउटिंग टेबल को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, वी गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड राउट। राउट के अंदर हमें ये वैल्यू देखनी है, इसका 0000.0/0 का मतलब है कि हर किस्म की ट्रैफिक आ सकती है और जा सकती है। तो इस लिस्ट में से अब मुझे इंटरनेट गेटवे को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इंटरनेट गेटवे आ गया और ये मेरा लाहौर का इंटरनेट गेटवे है, ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। तो ये बड़ा ज़रूरी स्टेप है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी ट्रैफिक कहीं भी नहीं जाएगी, उसको रास्ता दिखाना। लेकिन यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ। अब आप इसने ये भी बताना है कि वो कौन सा सबनेट है जिसमें से ट्रैफिक एक्सपेक्ट करेगा, जो जिसकी ट्रैफिक इसके थ्रू जाएगी, उसको इसके साथ एसोसिएट करना है। तो लेट्स डू दिस। तो ये मेरा पब्लिक वाला, इसको मैंने एसोसिएट करना है क्योंकि पब्लिक की ट्रैफिक जाएगी। तो आई विल डू दिस, गो हियर, पब्लिक वाला ये पहले वाला, इसको अब मैं रास्ता दे रहा हूँ इस पब्लिक, जो कुछ भी इस पब्लिक सबनेट के अंदर बनाएंगे EC2 बनाएंगे या कुछ भी, तो वो सारी ट्रैफिक इसके सबनेट से जो है उसको अलाउ करेगा कि वो राउट कर सकता है, दे कैन गो ऑन द इंटरनेट। तो ये तुम्हारा हो गया ये वाला पार्ट। तो दिस पार्ट इज डन। अब हम इस पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमें एक और राउटिंग टेबल बनाना है और इसका नाम है VPC LHA RT प्राइवेट। तो फिर इसके साथ यही VPC अटैच होगा। तो क्रिएट, तो let's do like consistency, we're gonna put the RT here as well. ओके चलो, तो ये दो सबनेट हो गए। अब ये जो मैंने अभी प्राइवेट बनाया है राउटिंग टेबल, इसको भी किसी के साथ अटैच करना है। तो इसके साथ किसको अटैच करेंगे, यहाँ पे ट्रैफिक लोकल रहेगी, हमें इसको गेटवे नहीं देना, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो गेटवे सिर्फ हमने देना था जो पब्लिक वाला। इसके साथ हम लगाएंगे ये जो सबनेट हमारा बचा हुआ प्राइवेट वाला, उसको एसोसिएट करेंगे। तो जब तक हम एसोसिएट नहीं करेंगे उस सबनेट से किसी किस्म की ट्रैफिक, उसको पता ही नहीं मैंने जाना कहाँ है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको बताना कि ये है तुम्हारा
गेट जहाँ से तुमने अपनी ट्रैफिक को मूव करना है. दिस इज हाउ दे गोइंग टू राउट देयर ट्रैफिक. सो इट्स गोइंग टू बी स्टे लोकल. हियर इज गोइंग टू बी लाइक एसोसिएशन विद द प्राइवेट सबनेट. ये पार्ट हो गया. तो ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए. अब हम क्रिएट करते हैं VPC B. सो लेट्स गो बैक टू VPC. यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे LH VPC B और इसका जो साइज है वो ये है. और ये हम इसका साइडर ब्लॉक दे देंगे और इसकी टेंडेंसी डिफ़ॉल्ट, एवरीथिंग इज सेम. ओके, क्रिएट. अब ये हमारा जो VPC है इसके डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ पे कोई गेटवे नहीं है. देयर इज़ नो वे टू गो आउट और ना ही इसके अंदर कोई पब्लिक सबनेट है. इसमें सिर्फ एक ही सबनेट है और वो है प्राइवेट. तो अब VPC हमारा क्रिएट हो गया और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने राउटिंग टेबल को बताना है कि इसका जो राउटिंग टेबल है VPC B का वो हमने क्रिएट करना है. तो पहला स्टेप तो हो गया. अब इसका बनाना है हमने एक सबनेट. तो सबनेट हम बनाएंगे यहाँ पे जाके. इस दफ़ा हमने जो पिक करना है VPC B और VPC B हमने पिक कर लिया और यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया क्या नाम इसका रखे. इसका नाम LH VPC B SN प्राइवेट. सो ये VPC B का सबनेट प्राइवेट सबनेट है और इसकी जो रेंज है वो है 10, 200, 124. तो ये वैल्यू हम इस पे लिख लेंगे. मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, लेकिन आप टाइप भी कर सकते हैं. तो ये इसका हो गया. तो ऐसे अब हमें इसको क्रिएट रेंज वाइज सेइंग 201.0 must be valid. Okay. 10.200. क्या थी 1 1.0/24. वो टाइपिंग मेरा ख्याल है. अब ये हो गया. तो इसका भी हमें राउटिंग टेबल बनाना है कि यहाँ से ट्रैफिक कैसे राउट होगी. सो लेट्स क्रिएट ए राउटिंग टेबल. तो इसका हम नाम रखते हैं VPC B RD प्राइवेट. और इसके लिए मैं VPC जो सिलेक्ट करना है वो B करना है. So routing table, we have a routing table VPC B, VPC A. These are the default one. So this is going to be private. So VPC
be private. तो ये लाहौर ए का, ये इसका, लेकिन एक इसमें मिसिंग है, एक राउटिंग टेबल। जो प्राइवेट बी राउटिंग टेबल है उसको, उसके साथ भी हमने जो ये वाला जो सबनेट है उसको एसोसिएट करना है। सो लेट्स डू दिस, क्लिक हियर, select and make sure it's private B. So route local, that's it. So let me check all of this one by one. So this one has a route, it's a local, and subnet associate, no. So it's which RT is this? Public. So this is my public routing table. उसके साथ I attach the public subnet, और route जो है वो मैंने इसको गेटवे का दे दिया, so the traffic can move outside the Amazon network. और दूसरा मैंने इसका बनाया था private routing table in VPC A, which has a local traffic and they have a private subnet. That's good. And then we created the private B routing table. वहाँ पे हमने इसको जो उसका सबनेट था वो अटैच कर दिया, तो इसका भी राउट लोकल है. सो एवरीथिंग लुक्स गुड. अब ये जो ये दिस पार्ट इज डन, this part is completed. Now the next thing is we have to create these three instance. पहला हम इसमें क्रिएट करेंगे पब्लिक के अंदर, दूसरा फिर इसमें अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर, और फिर इसके इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर प्राइवेट के दो प्राइवेट सबनेट के अंदर होंगे EC2 इंस्टेंसेस, और एक जो है पब्लिक का. तो ट्रैफिक का जो फ्लो होगा, जो हम इसको कनेक्शन करेंगे वो यहाँ से करेंगे. वी विल कनेक्ट टू दिस EC2 फर्स्ट यूजिंग द SSH कमांड, and then from this EC2 I'm going to connect to the one EC2 in the private IP, with the private IP in the private subnet. So let's do this. So I'm going to create my first instance. One more thing, I just want to make sure I'll do this one, configure instance. यहाँ पे मुझे अपना जो हमने बनाया लाहौर ए, जो कि जिसके अंदर पब्लिक सबनेट है, वो सिलेक्ट किया. मैंने अपना सबनेट जो पब्लिक वाला वो सिलेक्ट किया. यहाँ पे मुझे इसको पब्लिक का IP एड्रेस चाहिए, तो आई विल इनेबल इट. और उसके बाद ये मेरा बाकी बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग लुक्स गुड. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. यहाँ मुझे स्टोरेज इज गुड. इसको टैग दे देते हैं नेम, इस कहते हैं पब्लिक EC2, और इसको हम, तो मुझे इसको SSH करना है माई कंप्यूटर से, तो मैं सेलेक्ट करूँगा माई. जब मैं माई IP एड्रेस चेक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो IP एड्रेस है जिससे मैं ये सारा कुछ रन कर रहा हूँ उसको डिटेक्ट करेगा, और वो यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा कि मैं इस IP एड्रेस से आ रहा हूँ. दूसरा इसको हम कर लेते हैं पिंग करेंगे, तो हमें ये प्रोटोकॉल चाहिए, तो we can do this from anywhere. So these two things are good. I can create इसके
सिक्योरिटी ग्रुप ए फॉर VPC ए। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप मैंने ए के लिए ये डिज़ाइन कर लिया। ये हो गया। This is giving me the information about my security group. It's telling me about the instance AMI. So I shall launch it. So launch करने के लिए मैं इसकी नई की ले लेता हूँ। I will say give me a new key. So I say VPC LHA की। तो ये मेरी की का नाम है। मैं डाउनलोड कर लूँगा की अपने यहाँ पे। ये मेरी प्राइवेट की डाउनलोड हो गई। आई विल लॉन्च इट। व्यू इंस्टेंस। तो जब तक ये रन कर रहा है हम इसको वेट करने के बजाय हम इसको एक जो प्राइवेट में लॉन्च करना है वो लॉन्च कर लेते हैं। ओके, क्रिएट दिस वन। और इस दफ़ा मैं VPCA में प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये मैं प्राइवेट सबनेट में लॉन्च कर रहा हूँ और मुझे पब्लिक IP एड्रेस नहीं चाहिए, तो ये डिसेबल ही रहेगा। तो यहाँ पे आके आई विल टैग दिस VPCA, I will say name LHA PR EC2। तो इसके लिए भी मैं SGA यूज़ कर लेता हूँ। लॉन्च। तो मेरी की ये थी और ये मैं लॉन्च कर लूँ। तो इसमें जो इसका नाम भी कंसिस्टेंट करते हैं LHA। तो इसमें अब एक चीज़ है जो सिक्योरिटी ग्रुप है। अगर हम इस डिज़ाइन को देखें तो ये जो इंस्टेंस है ये इस इंस्टेंस से बात करेगा, लेकिन चूंकि हमने उसको बताया है सिक्योरिटी ग्रुप को कि जो ट्रैफिक है वो मेरे सिस्टम से आएगी, मेरा IP एड्रेस वहाँ पे गया है, तो मुझे इसको सिक्योरिटी ग्रुप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे ये जो SSH है इसको मैं करूँगा एनीवेयर। कहीं से भी हम SSH कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों इसी तो जो इंस्टेंस लॉन्च किए हैं दोनों के लिए यही सिक्योरिटी ग्रुप है। तो मुझे इसके लिए ओपन करना पड़ेगा, वरना ये मुझे यहाँ तक तो आने देगा, यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो वो IP एड्रेस कुछ और होगा, तो इसलिए मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। तो लेट मी सी सिक्योरिटी ग्रुप अगेन। दिस इज आई हैव दैट इज। अब मुझे क्या करना, अब मुझे इस इंस्टेंस को रीच करना है पहले, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से यहाँ जाना है। सो लेट्स डू दिस। गो टू द डैशबोर्ड, अपने इंस्टेंस में आऊँगा
और ये जो मेरा पब्लिक वाला है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मुझे ये मेरा आईपी एड्रेस मिलेगा। मैं डिटेल्स पे जाऊँगा तो ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस, ये एड्रेस मुझे चाहिए। तो दूसरा तरीका ये है कि या तो मैं इसको कॉपी करके पूरी कमांड लिखूँ, या फिर मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि अगर मैंने SSH करना है तो मुझे ये कमांड चाहिए, तो मुझे कमांड जो है वो टाइप नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं इसको ऐसे करके तो अपना से खोलता हूँ इसको, CMD करेंगे तो आपका ये कमांड खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे जाना है उस डायरेक्टरी में जहाँ पे मेरी की पड़ी हुई है। तो मेरी की जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। उसको मैं देखता हूँ कहाँ पड़ी है। ये पड़ी है इस जगह पे डाउनलोड के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से उठा के SSH में डाल देता हूँ। तो इससे ये होगा कि मैं जब उसको कमांड रन करूँगा तो ये मुझे उसका पैथ नहीं लिखना पड़ेगा। cd2 downloads /ssh डाउनलोड की स्पेलिंग गलत, लोड्स /ssh। अब मैं यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे dir करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि ये मेरी यहाँ पे LHA की पड़ी हुई है। अब मुझे पैथ नहीं देना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी पैथ को उस कमांड सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे जो कमांड वहाँ से मैंने उठाई है ये वाली कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको टाइप कर दूँगा। तो अब ये मुझे पूछेगा कि तुमने कंटिन्यू करना है, मैं कहूँगा यस। तो अब मैं इस सिस्टम के अंदर आ गया हूँ। अब मैं इस सिस्टम के अंदर आ गया हूँ कि जो पहला हमारा डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। कैसे पता चल जाएगा, लेट्स सी। ये तो है उसका पब्लिक आईपी एड्रेस। अगर आप जाएंगे इंस्टेंस के ऊपर तो वो आपको दिखाएगा उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.100.0.195। तो इसको आप नोट करो। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इट विल शो यू दिस 10.100.0.194। सो दैट्स मीन मैं अब इस सिस्टम में हूँ, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस दिखाएगा आपको। पब्लिक से आप लॉग इन हुए हो लेकिन आपको ये प्राइवेट एड्रेस दिखाएगा। तो ये मैं इसको सुपर यूज़र बनने के लिए मुझे ये कमांड देनी है sudo su। अब मैं सुपर यूज़र बन गया हूँ। अब मुझे यहाँ से इस मशीन पे जाना है तो मुझे इसका आईपी एड्रेस चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे वही की चाहिए जो कि मैंने इस लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल की थी। तो उसका तरीका ये है कि मैं पहले इसमें उस की को इसके अंदर लेके आऊँगा। अब मैं उस की को इस मशीन के अंदर इंस्टॉल करूँगा ताकि ये जब मशीन इससे बात करे, जब से इंस्टेंस से बात करे तो उसको ऑथेंटिकेशन के लिए जो की चाहिए वो यहीं पे इसके ऊपर अवेलेबल हो। तो वो मैं अब करने लगा हूँ। उसका तरीका ये है कि आई कैन से लाइक माई की, कोई भी नाम दे सकता हूँ, .pem। तो ये मैंने कर दिया। जो मैंने डाउनलोड की थी कि यहाँ पे इसके अंदर ये इसको मैं खोलूँगा तो ये इस तरह से आएगी। इसको मैं करूँगा Ctrl+A सारा इसको कॉपी करने के लिए, Ctrl+C, और उसके बाद मैं इसको इसमें जाके यहाँ पे माउस से राइट क्लिक कर दूँगा तो ये मेरी सारी की जो है यहाँ पे सेव हो गई। अब मैं करूँगा Shift:, पहले एस्केप, फिर Shift:, फिर उसके बाद मैं कमांड जो नीचे लिखूँगा वो लिखूँगा WQ और फिर मैं इसको एंटर कर दूँगा। अब ये मेरे यहाँ पे फाइल बन गई है, ये देखो myKey.pm।
लेकिन अब मैंने इसकी जो है परमिशन इसके ऊपर चेंज करनी है। इसकी परमिशन इसका रीड एंड राइट है, तो मैं कर रहा हूँ chmod 700 mykey.pem। तो अब इसकी देखो कि ये वैल्यू ये हो गई। अब मुझे चाहिए वो आईपी एड्रेस उस दूसरी मशीन का, और वो कौन सी है, वो ये वाली है। अब इसका जो आईपी एड्रेस है पब्लिक तो है नहीं है, चूँकि ये प्राइवेट है, तो मुझे प्राइवेट लेना पड़ेगा इसका। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस लूँगा, वापस इधर आऊँगा, तो वही कमांड, या फिर मैं इसको ऐसे SSH -i mykey.pem EC2 user ऐड, और यहाँ पे मैं वो आईपी एड्रेस डाल दूँगा। तो ये भी वही मुझे पूछेगा, यस, फास्ट फ्रेज, नो। So now I am into this machine. So from this machine, if I ping this subnet, it won't work. So let's see, ping 110.1.0. See, it won't go, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट वीपीसी है, ये इंडिपेंडेंट वीपीसी है। मैं यहाँ से इसको पिंग कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक EC2 जो है ना, वो हमें यहाँ क्रिएट करना है सबनेट C के अंदर। सो लेट्स गो। सो लॉन्च द इंस्टेंस, प्राइवेट। तो मुझे अब क्या करना है, अब मुझे VPC B को सिलेक्ट करना है। ये मेरा VPC है, इसके अंदर एक ही सबनेट है, उसको सेलेक्ट किया, और मुझे ये पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, ये 100% प्राइवेट है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा नेक्स्ट, आई विल से नेम VPC B, PRV instance configure। तो अब मुझे यहाँ से जब इस मशीन पे जाना है, तो मुझे ये वाला आईपी एड्रेस चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैंने इस तरफ जाना है। तो ये वाला मुझे रेंज चाहिए, ये वाली, कि ये मशीन इस मशीन को इस सबनेट से इस रेंज के अंदर जो कोई भी चीज़ होगी जो इसको कनेक्ट करने की कोशिश की, वो अलाउ की जाए। तो मैं ये आईपी एड्रेस उठाऊंगा यहाँ से, आई विल गो देयर, आई कैन डू दिस। और इसी तरह हमें एक पिंग करने के लिए हमें ये वाला प्रोटोकॉल चाहिए होता है ICMP। तो इसके लिए भी मैं इसको यही आईपी रेंज दूंगा। राइट, तो ये अलाउ करेगा, इसको कहते हैं SGB। और इसको मैं लॉन्च करूँगा इसी की के साथ।
अब ये हमारा एक और इंस्टेंस क्रिएट हो गया VPC-B के अंदर। अब देखना ये है कि अभी भी मैं इसको पिंग कर सकता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। It's running now. Okay. So let me get his IP. Let me ping it first. और पिंग करते हैं हम इसके साथ, ये वाला इसका IP एड्रेस है, तो ये नहीं जाएगा। क्यों कि अभी हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है दोनों के दरमियान, सब सिर्फ हमने ये लॉन्च किया। और मैं जो इसको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर ट्रैफिक आए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन कनेक्शन कोई नहीं अभी तक। अभी सिर्फ मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है। तो ये हो गया हमारा सबनेट हो गया, इसके अंदर EC2 हो गया, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब लेट्स क्रिएट VPC पेयरिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के राउटिंग टेबल को भी अपडेट करना है। हमने बताना है कि यहाँ की ट्रैफिक इधर जा सकती है और इधर की ट्रैफिक इधर आ सकती है। लिहाजा इन दोनों राउटिंग टेबल को, इसके राउटिंग टेबल को और इसके राउटिंग टेबल को, इसके राउटिंग टेबल को इसका IP एड्रेस देना है और इसके राउटिंग टेबल को इसका IP एड्रेस देना है। तो लेट्स डू दैट। उससे पहले हमने जाना है VPC पेयरिंग के ऊपर। तो ये है पेयरिंग कनेक्शन। अंडर राउटिंग टेबल यू हैव अ पेयरिंग कनेक्शन, गो देयर। तो मैं क्या करूँगा, मैं पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करूँगा। तो इसका नाम क्या रखते हैं, VPC LHA to VPC B। तो ये राउटिंग A और B के दरमियान जो बन रही है कनेक्टिविटी। तो लेट्स सी, ठीक हो गया, ये इसका नाम हो गया। अब ये देखना है कि इसमें हमें जो पहला है वो VPC-A है। VPC-A जो है ना, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि मैंने कनेक्शन करना है VPC-B से। तो यहाँ पे जो VPC-B है वो इसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे मैंने A ने रिक्वेस्ट की, B ने उसको एक्सेप्ट करना है। तो लेट्स सी, तो क्रिएट पेयरिंग, राइट, सक्सेसफुल, ओके। सो ये अभी इज गोइंग टू टेक अ व्हाइल। तो अभी मैं इसको पेंडिंग एक्सेप्टेंस आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक्शन पे जाऊँगा और मैं कहूँगा एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। तो चूँकि मैं खुद ही हूँ तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये कोई और फ़र्ज़ करें एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ उसका कनेक्शन हो रहा है, तो फिर वो उस कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, एक्टिव हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके टाइम जो राउटिंग टेबल है वो हमें अपडेट करने हैं। अब मैं जाऊँगा राउटिंग टेबल्स में। तो जो राउटिंग टेबल A है प्राइवेट का, उसमें जाके मैंने कहना है कि जो ये वाली ट्रैफिक है, ये वाली इस सबनेट से इसको अलाउ करो। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा और ऐसे यहाँ पे ये डालूँगा और यहाँ पे मुझे अब सिलेक्ट करना है
ये पेयरिंग कनेक्शन, ये मेरा टारगेट होगा और ये मेरा था। इसको मैंने सेव कर दिया। ये एरर आ रहा है, so I will do this. I will go to pairing. I has a typo and I will select this, save again. तो A को मैंने कर दिया, अब मुझे करना है B को। तो जो B का है प्राइवेट, उसमें मुझे देना है ये वाला IP एड्रेस, this one. तो I will add the route, add, तो ये होगा 10.100.1.0/24 और इसको भी मैं कहूँगा कि तुमने जो राउटिंग करनी है वो इसके थ्रू करनी है, सेम टारगेट। सो क्या किया मैंने कि इसको बताया इसका एड्रेस और इसको बताया इसका एड्रेस, ताकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो मैंने राउटिंग टेबल A को बताया है B का एड्रेस और B को बताया है A का एड्रेस। सो दीज टू। दैट्स इट। लेट्स सी कि अब ये कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं करते आपस में। So first thing, ping the IP address. I'm pinging from this machine to this machine. So what is the IP address of this? तो ये B वाला जो इंस्टेंस है इसका मुझे IP एड्रेस चाहिए और मैं इसको पिंग करने दूँ। See? Now these two are talking. So before the creating the peer connection, they were not talking. There was packet loss time. You see the message now. So the moment this connectivity created between these two VPC pairing, now I can ping to this machine, and let's see if I can ping to. I can log into this machine. So yeah, then again I have to do everything again. So this is the lab. Actually I just wanted to show you how to create the VPC pairing, and in this lab we first of all we created the VPC A, and in that VPC हमने दो सबनेट क्रिएट किए, वन पब्लिक वन प्राइवेट, और फिर हमने एक दूसरा VPC B क्रिएट किया, उसके अंदर एक प्राइवेट सबनेट बनाया। फिर हमने इन दोनों के अंदर EC2 इंस्टेंस लॉन्च किए, पब्लिक में और पब्लिक से हमने प्राइवेट में। पब्लिक वाले से मैं लॉगिन हुआ, उससे फिर मैं प्राइवेट EC2 में इंस्टेंस में गया और वहाँ से मैंने इसको पिंग किया। जब मैंने पिंग किया तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। देन आई क्रिएटेड द VPC कनेक्शन, and once I created a VPC connection, I give the routing address, जो इसका एड्रेस जो था वो इस राउटिंग टेबल को दिया और इसके राउटिंग टेबल का एड्रेस इसको दिया, ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। और फाइनली आई वॉज एबल टू पिंग दिस सेम मशीन, जो कि मैं पहले नहीं कर पा रहा था। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस VPC pairing lab. Thank you.